Yes. Okay. So let me check how many children are there. 59. We are going to do the neat part of this lesson. Now, we have already seen the process of digestion. What do you mean by the process of digestion? Conversion of complex substance into the simple substance with the help of what? With the help of enzymes is called as the digestion. Now, in our mouth, there is a physical digestion taking place. मतलब food का churning होता है, breaking down होता है with the help of teeth. What is that process called as? Please note down. It is called as mastication. Mastication का मतलब होता है breaking down of big particles of food into smaller particles with the crushing of teeth. Yes, that is called as the, what is that called as? Mastication. Next, this you can see about this. Our digestive system is made up of the alimentary canal. The alimentary canal can also be called as a gut. All these parts we have already discussed in our lecture. All of you remember now? Yes. Just go through the diagram. It is mouth opening into the buccal cavity. In our buccal cavity or the oral cavity, we can see the salivary gland. There are three pairs of salivary glands: submaxillary, sublingual, subparotid. Then there is a pharynx which will open into the esophagus. Then stomach में तीन regions थे, if you remember. जो ऊपर वाला रीजन था उसको हमने कार्डियक बोला था, फिर फंडस, फिर पाइलोरिक. Cardiac, fundus, pyloric. Cardiac and pyloric are being guarded with the sphincter called as a cardiac sphincter and the pyloric sphincter respectively. Then we can see the glands like liver, which is the largest gland. We can see the gallbladder. Yes, gallbladder का जो duct है उसे हम कौन सा duct बोलते हैं? Cystic duct बोलते हैं. और जो liver का duct है उसे हम क्या बोलेंगे? Hepatic duct बोलते हैं, है ना? लिवर के डक्ट को क्या बोला जाता है? हेपेटिक डक्ट. गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोला जाता है? सिस्टिक डक्ट. यहाँ पे पैनक्रिया है, पैनक्रिया का जो डक्ट है उसे क्या हम बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट. पैनक्रिया ड्यूअल ग्लैंड है ना? वी हैव लर्न दैट पैनक्रिया इज अ ड्यूअल ग्लैंड. इट इज मिक्स्ड ग्लैंड. इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर. Then we have seen the small intestine starting with the duodenum, then jejunum, then ileum. फिर वहां से क्या स्टार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? सीकम. देन असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन, देन डिसेंडिंग कोलॉन, देन रेक्टम एंड देन एनस. सीकम के पास एक वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो हमारे केस में फंक्शनल नहीं है. यस. नाउ so again the same points are been repeated over here. बक्कल कैविटी है जिसमें टीथ होता है, टंग होता है. टीथ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. टीथ के बारे में we are having three different types of teeth. What are they? We are thecodont. Thecodont का मतलब क्या बताया था मैंने? Two times teeth are. नहीं बेटा, उसको डाइफोडोंट बोलते हैं. डाई का मतलब होता है टू. Jaw में embedded. वेरी गुड बच्चा. व्हेन द टीथ इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन उसे हम कहते हैं थीकोडोंट. वेरी गुड बच्चा. व्हेन द टीथ इज एम्बेडेड इन द जॉ बोन देन दैट इज कॉल्ड एज अ थीकोडोंट. क्योंकि हमारे लाइफ में दो बार टीथ आता है, एक जो मिल्क टीथ होता है और उसके बाद जो परमानेंट टीथ होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट. डाइफोडोंट. डाई का मतलब होता है टू. मिल्क टीथ को हम डेसिडियस टीथ या फिर टेम्पररी टीथ भी कहते हैं और परमानेंट टीथ को हम अडल्ट टीथ भी कहते हैं. देन वी आर हेट्रोडोंट आल्सो, है ना? हम हेट्रोडोंट भी हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास चार अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट हैं.
दे आर द इंसीजर्स, जो आगे के दांत होते हैं. देन आप देख सकते हो यहाँ पे इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और पीछे वाला मोलार्स. हम उसको कैसे एब्रीवेट करते हैं? आई, सी, पी, एम एंड एम. So if you want to give the dental formula, so how we will write down 2, 1, 2 and 3. दो incisors, एक इस साइड कैनाइन, एक इस साइड कैनाइन, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. दो प्रीमोलार्स राइट साइड, दो प्रीमोलार्स लेफ्ट साइड एंड 3 मोलार्स राइट साइड, 3 मोलार्स लेफ्ट साइड. तो ऐसे करके 16 teeth in upper jaw and similarly the 16 set of teeth in the lower jaw. So the total is 34 teeth. Sorry, 32 teeth. Yes. पर बच्चों के अंदर क्या नहीं होता, ये आपको नीट में हमेशा पूछा जा सकता है. तो बच्चों के अंदर ये प्री मोलार दांत नहीं होता है. प्लीज नोट डाउन. छोटे बच्चों के अंदर प्री मोलार नहीं होता है. दे आर हैविंग मोलार, पर मोलार कितना होता है? सिर्फ 2 ही होता है. तीसरा मोलार कब आता है? जब भी 18 ईयर्स में, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं या फिर अक्ल दांत कहते हैं. यस, तो ये जो थर्ड वाला मोलार है ना, विजडम टीथ, जिसको आप अक्ल दांत बोलते हो, वो 18 ईयर्स में आता है. तो छोटे बच्चे के पास टोटल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं. 20. सो प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट which can be asked in the NEET exam. So we are having 3 different types of teeth: thecodont, diphodont, heterodont. Adult में 32 teeth, बच्चों में 20 teeth. बच्चों में कौन सा teeth नहीं होता है? प्रीमोलार नहीं होता. प्रीमोलार. और मोलार एक कम होता है, 2 ही होता है. फिर we have seen about the tongue. टंग के क्या है? टंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं और इस प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैपिले. क्या कहते हैं? पैपिले. ये पैपिले का काम क्या है? इट हेल्प्स इन दी sensory taste receptors. These are sensory taste receptors which help in the detection of taste of the food. टंग का और क्या काम है? वो सलाइवा को मिक्स करता है, ठीक है, और फिर पुश करता है, स्वॉलोइंग में मदद करता है. फिर हम फायरिंग्स हमने देखा. फायरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है फॉर अवर रेस्पिरेटरी एंड अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. फायरिंग्स के अंदर ग्लॉटिस रीजन है और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप है जिसे हम क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस. एपीग्लॉटिस. फिर हमने ईसोफेगस देखा. ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है. ईसोफेगस के अंदर 2 टाइप के मसल्स हमने पढ़े थे, लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड द सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड. फिर हमने स्टमक देखा. स्टमक कौन से शेप का ऑर्गन है? रफली जे शेप का ऑर्गन. यू कैन सी रफली जे शेप का ऑर्गन है. उसके 3 रीजन्स हमने पढ़े, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक. कार्डियक जहां पे ओपन होता है, प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ईसोफेगस किस में ओपन होगा? कार्डियक रीजन में. तो वो जो ओपनिंग है ना, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. नोट डाउन ऑल ऑफ यू. So what you will be writing? Where the esophagus open into the stomach, where the esophagus open into the stomach, there is a sphincter present called as a gastroesophageal sphincter. Important. फिर फंडस रीजन है. फिर पाइलोरिक रीजन पे देखो. पाइलोरिक किधर ओपन होगा? डियोडेनम में ओपन होगा. होगा कि नहीं? पाइलोरिक इज गोइंग टू ओपन इन द डियोडेनम. तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है. इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर. चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं. सो इट इज द लॉन्गेस्ट वन. इसमें 3 रीजन्स है. डियोडेनम which is looking somewhat C shape.
very important. It is receiving hepatopancreatic duct. Very very important. Please note down. ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार उसको एम्फसाइज कर रही हूँ. डिओडेनम के अंदर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है. मतलब क्या? लिवर और पैनक्रिया दोनों ओपन होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. फिर आता है जेजुनम, बीच का पार्ट, फिर इलियम, लास्ट पार्ट. अच्छा, अगेन इलियम में आपको क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए? इलियम ओपन्स इन द सीकम at ileocecal junction by guarded by a ileocecal valve. Important. I hope all of you are noting down all these things. सब नोट डाउन कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes. मैं वापस बोल रही हूँ बच्चा, देखो इलियम में आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि इलियम जो है वो सीकम में ओपन होगा. सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना. तो उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलियोसीकल जंक्शन. मतलब इलियम और सीकम का जंक्शन. वहां पे भी एक वाल्व है, उसे हम कहते हैं इलियोसीकल वाल्व. और जहां पे भी वाल्व रहता है ना, वो बैकफ्लो नहीं करने देता. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन दिस आल्सो. Hepatopancreatic duct, ileocecal valve, ileocecal junction. Noted. Yes. स्मॉल Yes, ma'am. इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं. इस इंटेस्टिनल जूसेस को हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं. इंटेस्टिनल जूस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ सक्कस एंटेरिकस. फिर हमने हार्मोन्स भी पढ़ा था, वो हम बाद में देखते हैं. हम 4 हार्मोन्स पढ़ा था हमने. We have seen 4 hormones, gastrin, CCK, secretin, है ना, और GIP. ये 4 हार्मोन्स मैंने आपको लिखा के भी दिया था टेबुलर फॉर्म में. ठीक है, तो एक बार आप उसको भी देख लेना. लार्ज इंटेस्टाइन. ना लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है सीकम. सीकम का खास बात क्या है? यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट है. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन बट इट इज फंक्शनल इन द हर्बीवरस एनिमल. क्यों? कैसे फंक्शनल है हर्बीवरस एनिमल में? बिकॉज अपेंडिक्स में सेल्यूलेज नाम का एंजाइम बनता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. फिर आता है कोलॉन. कोलॉन के 3 हिस्से हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन. फिर आता है रेक्टम. रेक्टम एक पाउच है जहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है फीसेस. फिर रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? इजेशन या फिर डेफिकेशन. रिमूवल को क्या बोला जाता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इजेशन और डेफिकेशन थ्रू द एनस. एनस में भी मैंने आपको बताया था, एनल स्फिंक्टर इज देयर व्हिच इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. एनल स्फिंक्टर व्हिच इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में और भी बहुत सारी चीजें बताई थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का. कुछ मिनरल्स भी होते हैं और कुछ ड्रग्स का है जिसका भी एब्जॉर्प्शन होता है. बाकी कोई चीज लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है. और मैंने आपको क्या बताया था? लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बहुत सारे अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरियाज. डू यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स? और ये गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करते हैं और प्रोटीन का भी डाइजेशन करते हैं. These bacteria are showing the symbiotic association. Symbiotic association का मतलब क्या होता है? ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा है ना. तो बैक्टीरिया को भी फायदा है, उसको रेडीमेड खाना मिल रहा है. हमें भी फायदा है कि वो डाइजेस्ट करके दे रहे हैं. So these are the good bacteria showing the symbiotic association present in our large intestine. Understood? Yes, ma'am. चलो अब हम वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं. अब देखो, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक हो या इंटेस्टाइन,
दोनों के लेयर्स सेम हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, दोनों के लेयर्स सेम हैं। फिर फर्क कहाँ पर है? फर्क ये अंदर वाले लेयर में है, जिसको आप म्यूकोसा देख रहे हो लेबलिंग। ये जो म्यूकोसा लेबलिंग दिख रहा है ना, ये इसमें स्टमक अलग दिखता है और इंटेस्टाइन अलग दिखता है। समझा क्या बोला मैंने? बाकी का सारा लेयर स्टमक और इंटेस्टाइन में सेम होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी बेटा वंस अगेन। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टमक में और इंटेस्टाइन में लेयर्स सेम है, 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स स्टमक में भी है, 4 लेयर्स इंटेस्टाइन में भी है। फर्क कहाँ पर है? जो सबसे अंदर वाला लेयर है, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, म्यूकोसा स्टमक का थोड़ा अलग दिखता है, उसका काम अलग है, और म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन इज अगेन अलग दिखता है एंड काम अलग है। ठीक है, तो पहले जो कॉमन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अनकॉमन पॉइंट पे जाते हैं। तो कॉमन पॉइंट क्या है? फिर वो स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा। किस चीज से बना है? कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और थिन एंडोथीलियम, जिसको हम मीजोथीलियम भी कहते हैं, मींस एपिथीलियम से बना है। फिर आते हैं उसके अंदर वाला लेयर मस्कुलरिस, वो 2 टाइप के मसल से बना है, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल से बना है। फिर और अंदर चलते हैं, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर नर्व सप्लाई देखने के लिए मिलता है, ब्लड सप्लाई देखने के लिए मिलता है, लिम्फ मसल्स देखने के लिए मिलता है। अब और अंदर चलते हैं, म्यूकोसा। अब यहीं पे फर्क है, मैंने अभी आपको बताया। अगर ये स्टमक का टीएस सेक्शन है, अगर ये स्टमक का टीएस सेक्शन है, तो म्यूकोसा में हमें इर्रेगुलर लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? इर्रेगुलर लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स नजर आएंगे। किसमें? अगर ये स्टमक का टीएस सेक्शन है तो। और इस इर्रेगुलर लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स को हम RUGAE कहते हैं। समझा? अंडरस्टूड दिस मच? यस और नो? अगर Yes, ma'am. स्टमक का है तो स्टमक के टीएस में हमें इर्रेगुलर लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स नजर आएंगे इन स्टमक, कॉल्ड एज अ रुजे। बट अगर ये इंटेस्टाइन का है, इंटेस्टाइन का है, तो हमें फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन नजर आएगा, कॉल्ड एज विलाई। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का टीएस है ये, तो म्यूकोसा में हमें क्या नजर आएगा? फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन, कॉल्ड एज विलाई। और विलाई के अंदर हमें क्या दिखेगा? छोटे छोटे माइक्रोविलाई। और एक बात क्या हमें नजर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज अ लैक्टियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने आपको डायग्राम भी, टीएस ऑफ डायग्राम भी दिखाया था इसका। तो Yes. अगर ये इंटेस्टाइन का रहेगा तो उसमें लैक्टियल्स होता है। लैक्टियल्स मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर वाला लेयर है, ये इंटेस्टाइन का है। ये फिंगर के जैसा प्रोजेक्शंस आप देख पा रहे हो, these are called as villi। विला के अंदर होता है माइक्रोविला, उसके अंदर हम लैक्टियल्स देखते हैं। मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर के वक्त ये बताया था, और मैंने कहा था ये जो विलाइज है वो नीचे एक पिट बना रहे हैं, एंड दैट पिट इज कॉल्ड एज अ क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस। याद है आपको? I've told you there are Brunner's gland, there is crypt of Lieberkühns. याद है? Do you remember or not? Yes. So crypt of Lieberkühns किसके अंदर होगा? इंटेस्टाइन में। किसके अंदर होगा? इंटेस्टाइन। देखो अब इंटेस्टाइन में आप कैसे पहचानोगे कौन कौन से टर्म्स होंगे? मैं आप वापस रिपीट कर रही हूँ। अगर लैक्टियल है तो इंटेस्टाइन है, विलाए है तो इंटेस्टाइन है, माइक्रोविला है तो इंटेस्टाइन है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है तो इंटेस्टाइन है, ब्रूनर्स ग्लैंड है तो इंटेस्टाइन है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और Yes. नॉट? Yes, ma'am. मैंने आपको सिंपल फॉर्म में कर दिया है कि अगर आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं क्वेश्चन में, दैट मींस इट इज ऑफ इंटेस्टाइन।
Again I will repeat: villi, microvilli, lacteal, crypt of liver, Kunz, Brunner's gland. So if these terms are seen in the question, that means it is of the intestine. But what about stomach? Stomach का अगर कोई है तो आपको क्या क्या वर्ड्स दिखेंगे? आपको अभी आपने देखा RUGA दिखेगा, या तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर वर्ड दिखा मतलब वो स्टमक है. ठीक है, गैस्ट्रिक का मतलब भी होता है स्टमक. चलो फिर हम ग्लैंड्स की तरफ चलते हैं. सलाइवरी ग्लैंड, which secretes saliva. Salivary gland 3 pairs हैं, parotid in front of the ear और in present in cheek area. Sublingual का मतलब क्या बताया था मैंने? Below tongue. Submaxillary का मतलब क्या बताया था? Below lower jaw. और इन तीनों के अंदर मैंने और भी एक्स्ट्रा बताया था कि there are 2 types of glands cells, as the serous cells and the mucous cell. Correct? Serous cell and the mucous cell. Serous cell secretes the salivary amylase. yes amylase enzyme. और ये amylase enzyme क्या करता है? maltose को किसमें का बदलता, सॉरी स्टार्च को किसमें बदलता है? maltose में बदलता है. ठीक है. Then let us come to the liver now. Liver is the largest gland. लिवर के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल. क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल. लिवर का जो कवरिंग है इट इज कॉल्ड एज अ ग्लिसन्स कैप्सूल. लिवर के अंदर बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स हैं और लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट है. हेपेटिक लोब्यूल मेड ऑफ हेपेटिक सेल्स. हेपेटिक सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं. और लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस. उसको स्टोर किधर करता है? गॉल ब्लैडर में. लिवर का बहुत सारा काम था. We have discussed in the last class in the theory part. We have seen बहुत सारा work. Who will tell me the function of liver? You can refer your book and you can say, tell me the function of liver. Makes the food alkaline. क्या बेटा? Makes the food alkaline. Very good. Makes the food alkaline. Any other point? Conversion of ammonia into urea. Conversion of amino acid into ammonia बेटा. Means उसके बाद ammonia is converted into urea. हाँ, तो आप शॉर्टकट मत करो, उसको सही से बोलो. अमाइनो एसिड इनटू अमोनिया. अमाइनो एसिड इनटू अमोनिया इज द फर्स्ट चेंज. फिर बाद में यू कैन कंटिन्यू. अगेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. ओके, Yes. वेरी गुड. नेक्स्ट, Destruction of dead cell. वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ कफर सेल्स. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट, चिल्ड्रन में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते. अरे वाह, वेरी गुड. सब याद है शरण को. वेरी गुड बेटा. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द हेपाटो हेमोपोएटिक ऑर्गन भी बोलते हैं. हेमोपोएटिक ऑर्गन. Very good, bacha. What else? And one you can see over here also. It helps in the synthesis of vitamins like A, D, K, and B12. What else? इस एडल्ट में वो डिस्ट्रॉय करते हैं डेड सेल. अच्छा, adult में yes, वो destroy करते हैं. Very good. Any other point? It helps in emulsification of fat. ये तो कोई बोला ही नहीं. It helps in the emulsification of fat. ठीक है. Next, let us talk about the gallbladder. Gallbladder stores the bile juice. What is the color of bile juice? Yellow to green in color. Why the color is yellow to green in color? Which are the two pigments present in it? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन. कैसे बनता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन? By the breakdown of RBC.
बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से बनता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। अच्छा, बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं क्या? नो। वेरी गुड। फिर उसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट तो होता है, और भी कुछ Pigment. होता है? बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल। वेरी गुड बेटा। बाइल सॉल्ट कौन से दो टाइप के होते हैं? गए, अभी नहीं बता पाओगे, है ना? बाइल सॉल्ट कौन से दो टाइप के होते हैं? मैंने आपको लिखा के भी दिया था, नोटबुक में चेक करो बेटा। सोडियम, याद आया? सोडियम गाइकोकोलेट, याद है? एंड सोडियम टोरोकोलेट, यस और नो? Yes, children. Do you remember the bile salt? Sodium glycocolate and sodium taurocolate are the two bile salt, and these bile salt helps in the emulsification of fat. Noted? Yes. अभी देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना बेटा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So you please note down these points because इस पे से बहुत बार हर साल अल्टरनेट करके क्वेश्चंस आते ही हैं. तो देखो ये गॉल ब्लैडर वाला जो कॉलम है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. गॉल ब्लैडर तो आपको पता ही है कि बाइल जो सिक्रेट करता है, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पूछा जाता है, तो बाइल गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है ना, उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट. तो गॉल ब्लैडर का डक्ट विच इज सिस्टिक डक्ट, और लिवर का डक्ट जिसको हम हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, दोनों जहां पे यूनाइट होता है उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट. सो नोट डाउन, कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट क्या है? सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट. किया नोट डाउन? फिर अब कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ यूनाइट करता है? पैनक्रियाटिक डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट is called as a hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. I hope you are getting it. Cystic duct plus hepatic duct is common bile duct. Again, common bile duct plus pancreatic duct is equal to hepatopancreatic duct. And hepatopancreatic duct has been guarded with the sphincter of OD. Sphincter of OD. You can see the diagram also. Sphincter of OD. Here note down. Yes, all of you have noted down, beta. Yes. तो प्लीज नोट डाउन, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. देन पैनक्रिया के बारे में बात करते हैं. पैनक्रिया इज अ डुअल ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड. बहुत सारी चीजें हमने उसको बोली. इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर. उसका एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है? पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिनाई कहते हैं. क्या कहते हैं? एसिनाई. ये एसिनाई क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया क्या करता है? उसमें ग्रुप ऑफ सेल है जिसे हम क्या कहते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं. इजलेट ऑफ लैंगरहैन, जिसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल क्या बनाता है? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन. बीटा क्या बनाता है? इंसुलिन. और डेल्टा क्या बनाता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन. Very good बच्चा. All these are the hormones. Hormones secreted by the endocrine gland.
and juice is secreted by the exocrine gland. What is the function of glucagon and insulin? They will regulate the blood sugar level, and somatostatin will inhibit the secretion of insulin and glucagon. Then let us talk about the digestion. So when we first talk about the buccal cavity, we know that we are having salivary gland. Saliva contains dash. So please note down. It contains water. It contains electrolytes like sodium, potassium chloride, HCO3. It has an enzyme called as a salivary amylase, which can also be called as ptyalin. Ptyalin. उसके साथ साथ लाइजोजाइम्स भी होता है. लाइजोजाइम्स का काम मैंने क्या बताया था बेटा? टू ब्रेक डाउन दी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लाइजोजाइम्स का क्या काम है? खाना खाते वक्त अगर कुछ जर्म्स चले गए, बैक्टीरिया चले गए, तो ये लाइजोजाइम्स इसको मार देते हैं. सो दे आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट. एंटीबैक्टीरियल एजेंट. सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है. मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को इनटू maltose. Starch is a polysaccharide. Maltose is a disaccharide. फिर फूड चबाने के बाद एक राउंड बॉल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोलस. बोलस. ठीक है. फिर बोलस स्वोलो किया जाता है. फिर ये बोलस अब स्टमक में जाएगा. स्टमक में फूड कितने देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे रहता है. इट इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर 4 to 5 hours. There are again 4 different types of cells. You have learned in your theory only 3 cells. This is the 4th one is extra one which you have to note down. So please note down. Chief cells, peptic cells, zymogen. Zymogen beta kahin pe bhi rahega. Please note down. Again a biological language. Zymogen kahin pe bhi rahega. तो ये हमेशा इनएक्टिव एंजाइम बनाता है. जाइमोजन का मतलब होता है मेकिंग इनएक्टिव एंजाइम या फिर प्रो एंजाइम. नोटेड. प्लीज नोट डाउन. सो चीफ सेल को ही पेप्टिक सेल बोलते हैं जिसको जाइमोजन बोलते हैं. तो जाइमोजन बोला है मतलब कि वो क्या बना रहा है? इनएक्टिव एंजाइम बना रहा है जिसका नाम क्या है? पेप्सिनोजन. प्रोरेनिन. छोटा बच्चा है तो प्रोरेनिन, क्योंकि रेनिन एंजाइम तो छोटे बच्चों में ही पाया जाता है जो लोग दूध पीते हैं. एंड साथ में एक एंजाइम भी गैस्ट्रिक लाइपेज भी बनाता है. बहुत थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी बनता है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी बनता है बट बहुत थोड़ा सा. देन ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, HCl. म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल, म्यूकस. ये इतना आपने ऑलरेडी पढ़ा है थियरी में. ये लास्ट वाला एक एक्स्ट्रा है. That is the Argentine cells which secretes the gastrin hormone. So please note down. What is the pH of gastric juice? It is 1.8. Note down. Highly acidic because of HCl. 1.8. अब स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का. किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का. प्रोटीन पहले पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कन्वर्ट होता है ना. स्टमक के अंदर प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कन्वर्ट किया जाता है. किसके वजह से? पेप्सिन से. पेप्सिन नाम के एंजाइम से. पेप्सिन कैसे बनता है? पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है. याद है ना रिएक्शन? Yes. तो स्टमक में हमने क्या देखा था? पेप्सिनोजन HCl के वजह से पेप्सिन में बदलेगा और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा.
ओके, ये तो हो गई बड़ों की बात। पर अगर छोटा बच्चा है कोई जो सिर्फ दूध पीता है, यू नो दैट छोटे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन होता है। उनके अंदर रेनिन नाम का एंजाइम होता है। रेनिन, रेनिन क्या करेगा, पहले दूध को कर्डलिंग करेगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करेगा, और फिर मिल्क इज बीन कन्वर्टेड, और मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है फिर वही सेम रिएक्शन होगा। बट सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर रेनिन, RENNIN, RENN, आपने रेनिन नाम का एक और एंजाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था, बट वहां पे स्पेलिंग का फर्क था, सिर्फ एक एन का फर्क था। एक्सक्रीशन लेसन में RENIN था, और यहाँ पे क्या है, RENNIN। अच्छा, अभी आप लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है ना, सॉरी। तो आप ये याद रखो, RENNIN रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम, ठीक है। So it helps in the digestion of milk by hydrolyzing the milk protein, that is the casein. Understood this also? Just have a look over this part. Done, childrens? Now, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का भी डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। सो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट पूरा डाइजेशन होता है। मैंने आपको रिएक्शन लिखा के दिया था कि नहीं? ये शेरॉन, यस मिस। रिएक्शंस लिखा के दिया था ना बेटा आपको सारे? यस, लिखा के दी। Okay. Or one more point I missed over here is after digestion in stomach, the food has been converted into a semi-solid mass which is called as a chyme. फिर small intestine में सारे reaction होने के बाद the food is called as chyle. फिर food का क्या होता है, digestion होता है, ठीक है। तो you have to just mug up all the reactions. देखो मैंने intestinal glands में बताया था, दो glands, crypt of Lieberkühn and the Brunner's gland, ठीक है। इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन अल्कलाइन कंडीशन में होता है बिकॉज ऑफ द बाइल जूस। हाउ मच इंटेस्टिनल जूस इज सिक्रेटेड पर डे? इट इज 2 to 3 liters per day. All these reactions you all know, so again we will just go on further. These are the different types of hormones. Just go through these hormones, all of you. हार्मोन कौन से सेल्स बनाते हैं, उसका केमिस्ट्री क्या है एंड उसके इफेक्ट क्या है, जस्ट गो थ्रू फास्ट। यस बेटा देखा, I will move down also little bit. So the next part also.
So next part is the absorption. So there are two types of absorption, active and passive. You all know about that in detail. पैसिव में अगेन तीन टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट. All this we have learned in detail in our lecture. An active requires ATP. Then we can see the stages of this fat. Fat is called as micellar first, and then chylomicron. When it is attached to a protein, it is called as a chylomicron. Just go through this part also. Micellar, chylomicron. Now this part is also very important, can be asked for your NEET exam. So please see. बकल कैविटी में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या. जस्ट गो थ्रू दिस टेबल और आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Understood? Then calorific value of each one. कार्बोहाइड्रेट का कितना रहता है, 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम. प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम. फैट्स का 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम. Please note down the calorific values of carbohydrates, fats and protein. Next, let us go down. You have learned two different types of protein energy malnutrition. There is a kwashiorkor and the marasmus. Then different types of digestive disorders like the indigestion, constipation, vomiting. Vomiting को क्या बोलते हैं, regurgitation कहते हैं. Jaundice, diarrhea, है ना. एक बार ये भी सब देख लो and then we will start question solving. चलो now, let us solve the questions now. ठीक है? All of you are ready for solving the questions? Yes, children, all of you are ready for solving the questions?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, solve the questions then. I will give you 2 minutes time for solving. ऐसा नहीं कि I will not give you time. Just solve the first, second, third, because you can see that many questions now. First, second, third. Solve it fast. Vitamins. Shabash. Very good, beta. Only vitamins and minerals are required in very small quantity. Shabash. Next. Two tempered in jawbone. Yes. Thecodon, diphodon, and heterodon. Very good. We are 3 B down. option. Theco, dipho, and hetero. चलो मैच द फॉलोइंग करो. C. Yes, yes. C is right. Yes. फिफ्थ वाला सॉल्व करो. हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ क्या होता है? Dentine. शाबाश. What is dentine? It is the body of tooth. Body of tooth is called as dentine. Gums का मतलब तो आपको पता है ना, मसूड़े. आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा कोई टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट. Premolar. Yes, so you can see that it has been asked for AIPMT, so you are able to solve it. Yes. तो छोटे बच्चों के अंदर प्राइमरी टीथ डेंटिशन इज डिफरिंग. छोटे बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं होता. Again, the same question has been asked in a different form. Premolar. ठीक है, same question है in different form, so you can understand. It was been asked in NEET. Next. Papillae. Very good, beta. Papillae, which are the taste receptors or the sensory receptors. Epiglottis. Very good. Epiglottis will prevent the entry of food in our respiratory system. कौन है J शेप का? Stomach. इसोफेगस किधर ओपन होता है? Cardiac stomach. Very good, beta. Esophagus will open into the cardiac stomach. Next. Gastroesophageal sphincter. Yes. अभी मैंने आपको बताया था बेटा. It is called as a pyloric sphincter. Pyloric. What is gastroesophageal sphincter? अगर यही क्वेश्चन इधर ऊपर होता 11th में होता, Yes. अगर तो फिर ये राइट आंसर होता. समझा ना? अगर यहाँ पे 11th वाले क्वेश्चन में इसोफेगस ओपन इनटू डैश और अगर ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर लिखा होता ऑप्शन में तो ये करेक्ट ऑप्शन होता. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट अस सॉल्व डाउन. सिम्बायोटिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया था. सिम्बायोटिक मतलब जिसमें दोनों को फायदा होता है. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं? Cecum. Yes, they are present in the cecum region. Cecum. Very good बेटा. चलो 1, 2 और 3 क्या लेबलिंग है बताओ. 1 वाला क्या है? Liver. सेकंड वाला क्या है? Gallbladder. और थर्ड वाला क्या है? Pancreas. Which option is right? B option. See, you all are able to solve so nicely and properly. और कितना फास्ट आप लोग सॉल्व कर रहे हो. वेरी गुड. चलो करो ये भी वाला सॉल्व बेटा. क्यू पी क्यू आर क्या है पूछा है. देखो क्यू पी क्या है बताओ मेरे को. पी क्या है? Incisor. अगर ये जो नंबर 3 लिखा है वो कौन सा टीथ रहता है? Canine. कैनाइन. तो कैनाइन तो पूछा ही नहीं. फिर आर क्या है? Molar. मोलर नहीं बेटा. Premolar. और लास्ट वाला मोलार है. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इंसीजर्स, प्रीमोलार और मोलार. हाँ, तो ए ऑप्शन इज राइट. जब कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना तो फिर आप वहां पे मार्किंग भी करके सॉल्व किया करो. फिर आपको इजी होगा ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए. अभी तो यू आर डूइंग ऑनलाइन ना, बट जब आप पेपर पे करोगे ना बेटा तो आप पेंसिल से ऐसा मैच द फॉलोइंग करके फिर करना. ठीक है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो.
Serosa. Serosa. सेरोसा, वेरी गुड. कौन से लेयर में म्यूकोसा. Mucosa. वेरी गुड. अभी मैंने आपको 2-3 बार बताया था बेटा, दैट इज अ म्यूकोसा. नेक्स्ट वाला क्रिप्स ऑफ लिबर. हाँ, क्रिप्स ऑफ लिबरकुल. ऑड वन आउट कौन है? Brunner's gland. ब्रूनर्स ग्लैंड विच इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. बाकी सब सलाइवरी ग्लैंड. Salivary gland. इधर का सॉल्व करो. एमसीक्यू, सॉरी, मैच द फॉलोइंग. B. बी. B option. B option. Very good, beta. See, you all are so fast. You can solve so nicely and properly because you have done good revision. जब आपने खुद भी देखा है कि अगर आप रिवीजन किए रहोगे ना बेटा तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, चलो 21 देखो बेटा. हेपेटिक लोब्यूल. Hepatic lobules. यस, लिवर में है तो हेपेटिक. और अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल नहीं पूछ के कवरिंग पूछा होता तो आंसर क्या होता? Glissen's Glissen's capsule. capsule. ये सिनाई किसका पार्ट है? पैनक्रिया का. अल्फा सेल किसका पार्ट है? पैनक्रिया का. Pancreas. ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया, ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ Endocrine. पैनक्रिया. बाइल जूस कौन बनाता है? हेपेटिक सेल. हेपेटिक सेल्स मतलब लिवर के सेल्स. नेक्स्ट, गैस्ट्रोइसोफेजियल. देखो वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है. सेम क्वेश्चन इन द डिफरेंट फॉर्म. सो आंसर विल बी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. कॉमन बाइल डक्ट मतलब क्या प्लस क्या? सिस्टिक डक्ट प्लस Cystic duct हेपेटिक plus डक्ट. hepatic duct. Hepatic duct. वेरी गुड. सिस्टिक प्लस हेपेटिक. वेरी गुड बेटा. सो फास्ट आंसर यू आर गिविंग. वेरी गुड. 25 का सॉल्व करो. दिस वाज नीट क्वेश्चन. Sphincter स्फिंक्टर of ऑफ Oddi. ओडाई. स्फिंक्टर ऑफ Oddi. Very good. It is a sphincter of Oddi. Very good, Buddha. पैंक्रियास. Yes. Yes, pancreas is present. Very good. Deglutition का मतलब swallowing. swallowing. Mastication का मतलब chewing. Deglutition का मतलब swallowing. Next, कौन सा एंजाइम है? Salivary amylase. सलाइवरी अमाइड. लाइसोजाइम का क्या काम है? Antibacterial. वेरी गुड. इट इज एंटीबैक्टीरियल. सलाइवरी अमाइलेज का पीएच कितना होता है बेटा? 6.8. 6.8. वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट, रेनिन ने कौन? यस, प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटीन का लाइसिस करने वाला. लाइसिस मतलब डाइजेशन करने वाला. ब्रेकडाउन. यस, तो लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन. तो प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला. सो इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. अगर गॉबलेट सेल्स काम नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? गॉबलेट सेल क्या बनाता है? Mucus. Mucus. अच्छा, तो म्यूकस नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इन सब में से? मूवमेंट ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन. Movement of food down the Yes, intestine. बहुत मूवमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि म्यूकस का काम क्या है? इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस ना. तो स्टिकी सब्सटेंस होने की वजह से स्मूथ मूवमेंट करवाता है. पर अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो अच्छी तरह से सॉफ्टली फूड अंदर नहीं जा पाएगा. ओके. HCl कहाँ से सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस. ओके. गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है? गैस्ट्रिक एसिड कौन बनाता है? एसिड पूछा है, गैस्ट्रिक एसिड. Parietal cells. हाँ, गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl ही उनको बोलना है. कौन कितना पीएच पे फंक्शन करता है पेप्सिन? 1.8. वेरी गुड. इन्फेंट के अंदर कौन सा एंजाइम एक एक्स्ट्रा होता है? चलो देख के बताओ मुझे. रेनिन. Renin.
तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट? C. यस, पेप्सिनोजेन, लाइपेज भी अभी हमने बताया थोड़ा सा रहता है, और रेनिन, करेक्ट, सो सी। ब्रूनर्स ग्लैंड किधर है? सब म्यूकोसा ऑफ डियो Of duodenum, of duodenum. Then what should be the answer? 38 का both B and Both C. B and C. correct, both B and C, very good. Next, Intestinal mucosa. जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं. इंटेस्टिनल जूस इज आल्सो कॉल्ड एज सक्कस एंटेरिकस. इन लोग को पूछना है कि एंटेरोकाइनेस से क्या बनता है. एंटेरोकाइनेस का हाँ, Into trypsin. वेरी गुड. एंटेरोकाइनेस का काम क्या है? वो ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव को एक्टिव में बदलता है. ट्रिप्सिन इज एन एक्टिव वन. Pancreatic and bile Pancreatic juice and bile. वेरी गुड. देखो इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आए ना बेटा, सीईटी क्वेश्चन. इसके लिए आपका पूरा रिएक्शन फटके होगा तो ही आएगा ये. Sucrase maltase. Yes, it is sucrase which digests the sucrose, maltase and dipeptidase. Correct. कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता सक्कस एंटेरिकस में? Nuclei. करेक्ट. First वाला लो. A. फर्स्ट A. वन इज नॉट करेक्ट. वेरी गुड बेटा. बाइल में क्या नहीं प्रेजेंट है? Enzyme. एंजाइम्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? B. B. डी की बी? B. B. बी बी. Cystic duct. Duct of gallbladder is also called as hepatic duct. That is wrong. It is called as cystic duct. Cystic duct. Then Glucose. 2 molecules. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म होता है. करेक्ट. सॉरी, कहाँ चला गया? कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा हम लोग? 48 सॉल्व करो बेटा. Lipase. यस, फैटी एसिड का नाम आएगा तो लाइपेज ही है. नेक्स्ट, प्रोटीन का और स्टार्च का दोनों डाइजेशन कौन कराता है? Pancreatic juice. पैंक्रियाटिक जूस. करेक्ट. मैच द फॉलोइंग करो. एंटेरोकाइनेस क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ. Trypsinogen. रेनिन क्या करता है? Milk protein digestion. Protein. दैट इज केसिन को डाइजेस्ट करता है. अमाइलेज क्या करता है? Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट.
और लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा? Breakdown fat. Fats. Fat. Fats. कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? A option. ए वाला। चलो इसका मास्टर फॉलोइंग करो। A. A option. Yes, A very option. good beta. A option is the right option. Very good. Very fast. Nucleotide. Nucleases. Yes. Next, you can see this was a neat question. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। Lipase, amylase, trypsin. Yes, so D वाला is the correct option. Yes. Duodenum. Duodenum. Yes. Ileocecal wall. Very good. One. Ileocecal wall. Shabash. Rectum. Rectum. Yes. A and B. Both A and B. Both A and B. Very good. Gastrin. Gastrin. Gastrin hormone. Very good. Again a neat question. Secretin. CCK and secretin. CCK and secretin. Cholecystine, cholecystokinin and secretin. Okay. CCK किसके ऊपर एक्ट करता है? Pancreas and gallbladder. Yes, both pancreas and gallbladder. Then ये हार्मोन किसका इनिबिशन करता है? GIP. Yes, GIP क्या होता है? गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। Yes. गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड लिखा था ना बच्चा आपने? फुल फॉर्म नहीं लिखा था आपने? No. अच्छा तो लिख लो गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। पेप्टाइड मींस इट्स अ प्रोटीन। चलो 62 का सॉल्व करो। इसका इधर आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट ऊपर है शायद। आप पहले ये आधा पार्ट को देख लो, फिर आधा पार्ट देखते हैं ऊपर। Let me see the above part. 62. So it was second. So what should be the option? C is the correct option. If you want, you can check it also. Okay. C. Yes, C is the correct option. कौन सा मोमेंट बोलते हैं? Peristalsis. Next. Symbol diffusion and facility. Simple and facilitated.
किधर होता है काइलोमाइक्रोन का ये एब्जॉर्प्शन? Lacteals. लैक्टियल्स, यस लैक्टियल्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या है? Micelles. विथ प्रोटीन कवरिंग। जब मिसल्स के ऊपर प्रोटीन कवरिंग होता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है और हम उसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं। देन लैक्टियल्स कहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं? Fatty acid and glycerol. यस। नेक्स्ट and glycerol. Micelle, chylomicron. वेरी गुड, मिसल्स एंड काइलोमाइक्रोन्स। Amino acid glucose. यस, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। वेरी गुड बेटा। बक्कल कैविटी क्या एब्जॉर्ब करता था? अभी मैंने दिखाया था ना टेबल Drugs. बच्चों को। ड्रग्स, यस ड्रग्स। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं है, दवाई को भी हम ड्रग्स कहते हैं। Stomach. Stomach. यस। नेक्स्ट 5.65. 5.65. 5.65 kilocalories. शाबाश, वेरी गुड। Kilocalorie per Calorie per gram. किलो कैलोरीज पर ग्राम। यस। अब इजेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ejection. 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 यस। नेक्स्ट Prevent fecal matter. सो इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो। Which one is protein deficiency disease? Kwashiorkor. मैरास्मस कब भी होता है? छोटे बच्चों में, कितने साल के बच्चों में? इन्फेंट लेस देन इन एज। देन कौन सा सिम्टम्स है मैरास्मस के? एक्सेप्ट कौन सा सिम्टम नहीं है? मैरास्मस का बच्चा कैसा रहता है? एकदम पतला, एक्सट्रीम लीननेस। हाँ, तो उसके बॉडी में एडिमा नहीं होता है, सो एडिमा नहीं होता। एडिमा मतलब स्वेलिंग। जॉन्डिस में क्या डिपॉजिट होता है? बाइल पिगमेंट। Bile pigment. पिगमेंट। चलो ये फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। 80 का येलो ऑफ स्किन हो रहा है मतलब कौन सा सिम्टम है? Jaundice. Jaundice. वॉमिटिंग किधर होते हैं? वॉमिटिंग सेंटर्स अपने किधर होते हैं? Medulla. 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 देन मोमेंट इज इंडिकेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ फीसेस इन रेक्टम। अगर हो रहा है तो वो कौन सा सिम्टम है? कौन सा मतलब कौन सा Constipation. कॉन्स्टिपेशन। ओके। फूड का डाइजेशन ज्यादा कहाँ पर होता है? Small intestine. यस। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी occurs in। Large intestine. Large. चलो मैच द फॉलोइंग करो बेटा। सिर्फ ये दो मैच द फॉलोइंग है, ये और ये दो क्वेश्चंस है, फिर प्रैक्टिस टू पॉन्डर्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। यू कैन सॉल्व दैट इफ यू वांट। आई विल सॉल्व दैट आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। A. Option Yes. A. Option. यस, 85 का ए ऑप्शन है। और 86 का क्या आना चाहिए? Panic Panic. cells. Paneth cells. Very good, very good. Okay, so I can see that all the children are very active. You all are able to answer very quickly. I was very happy. The response was very quick. All of you have studied and kept. Good. Keep it up the same rhythm every time. Okay. Now you will be having your next lecture also, na beta? Yes. So we will stop now. Huh? Okay. Chalo then. Bye beta. Bye, ma'am.